غزالہ کا حسن رم، موتی کی آب، گل کی مہک، ماہ نو کا خم، ان سب کے امتزاج سے پیدا ہوئی ہے تو، اور کتنے حسین افق سے ہویدا ہوئی ہے تو، لہجہ ملیح ہے کہ نمک خوار ہوں تیرا، اور صحت زبان میں ہے کہ بیمار ہوں تیرا۔ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ سن 1857 اب لال قلعے پر اردو کے پرستاروں کی حکومت نہ رہی۔ مغلیہ سلطنت کے آخری تاجدار بہادر شاہ ظفر کو ملک بدر کر رنگون روانہ کر دیا گیا۔ 19 سنچری جو انتشار کا دور ہے، غالب کا دور، اس دور میں ایک عجیب و غریب تاریخ لکھی جا رہی تھی۔ ایک طرف تو ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ برباد ہو رہا ہے، دوسری طرف یہ عالم تھا کہ غالب ہی کے زمانے میں دلی ایک مرکز ہی بن گئی تھی، تہذیبی اعتبار سے، فکری اعتبار سے۔ اب ایک متاخرین کا دور آتا ہے کہ وہ لاسٹ چیپٹر جب ورلڈ لٹریچر کے برابر قداور اردو ہو گئی، اس میں غالب ہیں، ذوق ہیں، مومن ہیں، بالمقد حضور ہیں، ہرگوپال تفتہ ہیں، صدر الدین آزردہ ہیں، میر مہدی مجروح ہیں، اور بہادر شاہ ظفر خود۔ ہر دور اپنے تقاضوں کے اعتبار سے تخلیق کار پیدا کرتا رہتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جس عہد میں آپ کو غالب دکھائی دے رہے ہیں، جس عہد میں میر دکھائی دے رہے ہیں، اس کو آپ سنہرا دور کہیں گے۔ نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ خوش آمدید۔ اردو کا سفر ترقی کی سمت گامزن ہی تھا کہ انگریزوں نے پورے ہندوستان پر قبضہ جما لیا۔ تاجداروں کے تاج چھنے، راجاؤں کے راج چھنے، ریاستیں اجڑیں، اور حیران پریشان عوام کی تقدیر کا فیصلہ انگلینڈ کی ملکہ وکٹوریہ کرنے لگی۔ ہندوستانیوں کے سینے میں جنگ آزادی کا لاوا ابلنے لگا۔ ان تمام حقائق کے ساتھ ایک تاریخی حقیقت یہ بھی ہے کہ افراتفری کے اس دور میں بھی اردو نہ صرف پھلتی پھولتی رہی بلکہ وطن پرستوں کے ساتھ آزادی کی پہلی جنگ میں شامل ہو گئی۔ 18ویں صدی کے ابتدائی دور تک ہندوستان کا بیشتر حصہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے دام میں گرفتار ہو چکا تھا۔ اس وقت تک سرکاری زبان تو فارسی ہی تھی، لیکن عوام کی زبان اردو بن چکی تھی۔ انگریز اس حقیقت سے بخوبی واقف تھے۔ اپنے مفاد کے پیش نظر کمپنی بہادر نے 1832 میں سرکاری کام کاج کی ذمہ داری اردو کو سونپ دی۔ فارسی کو سبکدوش کر دیا گیا۔ اب یہ زبان اردو جو تھی آفیشیل لینگویج انگریزوں نے بنایا، اس کے بعد اس میں بے پناہ کام ہوا۔ اب اردو شناسی گھاٹے کا سودا نہیں تھی بلکہ سرکاری ملازمت کا وسیلہ بن گئی تھی۔ اردو قواعد اور لغت پر فورٹ ولیم کالج میں ابتدائی کام پورا ہو چکا تھا۔ روزگار کا نیا دریچہ کھلنے سے اسکولوں میں اردو باقاعدہ پڑھائی جانے لگی اور عوام میں اس زبان کو سیکھنے کی للک اور بھی بڑھنے لگی۔ 1857 تک تو کے زمانے میں تو اردو میں بڑے بڑے رائٹرز تھے۔ اردو زبان اور اردو پروز جو ہے وہ اس دور میں جو ہے فلاور کرتی ہے۔ ادھر حکومت برطانیہ کے خطرناک منصوبوں کے خلاف ہندوستانی عرصے سے متحد ہوتے جا رہے تھے۔ حسن اتفاق دیکھیے کہ انگریزوں کے خلاف ہتھیار بنا تو ان کا ہی قائم کیا گیا آلۂ نشر و اشاعت
यानी प्रिंटिंग प्रेस। प्रेस तो लाए थे वो तिजारत के सिलसिले में कि यहाँ पर वो छपवाएंगे और अपना काम करेंगे और लोग मशीन खरीदेंगे। वो इत्तेफाक है कि वो उनके लिए वो ज़ाहिर साबित हुआ। प्रिंटिंग प्रेस की आमद से उर्दू की किताबों की तादाद तो बढ़ी, साथ ही अखबारात और रसाइल का सिलसिला भी शुरू हो गया। अखबारों ने मुस्तनद खबरों की रफ्तार को तेज गाम कर दिया। कलकत्ता। उर्दू में सहाफत की शुरुआत 20 अप्रैल 1822 को राजा राम मोहन राय ने मिरातुल अखबार हफ्तावार जारी किया। उर्दू फारसी का पहला अखबार जामे जहानुमा भी इसी दौरान शाये होता रहा। 1837 में अंग्रेजों ने अपने मफाद के लिए पहला माहवार रिसाला खैर ख्वाहे हिंद के नाम से निकाला। इससे उर्दू में रसाइल शाये होने की बुनियाद पड़ गई। उर्दू का पहला अखबार जामे जहानुमा 22 मार्च 1822 से शुरू हुआ। वक्त का ये तकाजा था और ब्रिटिश सरकार अपने नज़रिए को, अपने हुकूमत के कारनामों को आवाम तक पहुंचाना चाहती थी। वो कोई खिदमत नहीं कर रहे थे। उनका मकसद सिर्फ एक था कि हमको हिंदुस्तान पे रूल करना है। दिल्ली से मौलवी मोहम्मद बाकर ने दिल्ली उर्दू अखबार निकाला। दिल्ली उर्दू अखबार इस ज़बान का पहला सियासी अखबार था। बागियों और बगावत की खबरों के अलावा हिंदुस्तानियों को बेदार करने वाली शायरी को इस अखबार में ख़ास तौर से शाये किया जाता था। दौर आया अंग्रेज़ों के मजालिम का, तो उस वक्त ज़बान उर्दू थी, तो उर्दू में ही अखबार निकलने का सिलसिला शुरू हुआ। कई लोग मैदान में आए, ख़ासकर मौलवी बाकर साहब दिल्ली में। उन्होंने 1836 में अखबार निकाला, दिल्ली उर्दू अखबार। दिल्ली उर्दू अखबार से मुतासिर होकर नित नए अखबारात के शाये होने का सिलसिला शुरू हो गया। आगरा, बरेली, मेरठ, कानपुर, मिर्ज़ापुर, इंदौर, लुधियाना, लाहौर, अमृतसर, मुल्तान और भरतपुर से उर्दू के अखबार और रिसाले शाये होने लगे। मुल्क के किन इलाकों में अंग्रेज किस किस तरह के जुल्म कर रहे हैं, इसकी इत्तला अखबारों और रसाइल के जरिए हिंदुस्तान के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने लगी। अखबारात की ये आज़ादी ज़्यादा अरसे तक बरकरार नहीं रही। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानी अखबारों और उनके मुदीरों पर बेपनाह सख्ती शुरू कर दी। उनके मजालिम का शिकार होने वालों में ज़्यादातर उर्दू के ही सहाफ़ी थे, लेकिन उर्दू सहाफ़त की लगाई हुई चिंगारी जल्द ही गदर की आग में तब्दील हो जाने वाली थी। दस मई 1857 लेफ्टिनेंट कर्नल स्मिथ की धमकियों और नाजेबा हरकतों से तंग आकर एक सिपाही ने बंदूक उठाकर स्मिथ का काम तमाम कर दिया। मेरठ में चली इस गोली की गूंज दूर दूर तक फैल गई और लाइट बंगाल इन्फेंट्री के सिपाहियों ने बगावत का ऐलान कर दिया। भूख से मरते किसानों ने भी बागियों का साथ दिया और इस तरह आज़ादी की पहली मुनज़्ज़म तहरीक शुरू हुई। सन 1857 बगावत की आंधी रफ्ता रफ्ता जोर पकड़ने लगी। दिल्ली इसका मरकज बनी और मथुरा, आगरा, ढाका, चटगांव, कटक, जबलपुर, इंदौर, कोल्हापुर के साथ साथ दूर दराज पेशावर भी इस तूफान की जद में आ गए। गदर का तो वाक़या एक बहुत बड़ा वाक़या है। ये हमारी तारीख़ में, हमारी कलेक्टिव हिस्ट्री में शायद ये पहला बड़ा सदमा है, यानी जिसमें खून बहुत बहा हिंदुस्तानियों का। ऐसा लगता है कि उस ज़माने में एक ज़िंदगी का एक पूरा कालीन लपेटा जा रहा है और एक नया बिछाया जा रहा है। बागियों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर से क़यादत की गुजारिश की। तारीख में ऐसे मौक़े कम ही आए हैं जब हुक्मरानों ने किसी ऐसी बगावत का साथ दिया हो जिसकी शुरुआत रियाया ने की हो।
बहादुर शाह जफर ज़ाहिर कोई मानने वाला नहीं उनका, एक गरीब बूढ़ा बेकस आदमी, नाम को बादशाह था, लेकिन उसके झंडे तले पूरा हिंदुस्तान जमा हो गया था। एक लोगों में एक उसकी सिंबॉलिक, एक अलामती एक हैसियत थी उसकी। और ज़ाहिर है कि वो ज़माना हमारे यहाँ उर्दू की एक नई तारीख शुरू होती। बख्त खां उन बागी सिपाहियों का रहनुमा था जो दिल्ली में छावनी डाले हुए थे। हिंदुस्तान से अंग्रेजों को निकालने के बाद बनने वाली हुकूमत के लिए बख्त खां ने एक आइन यानी कॉन्स्टिट्यूशन का मुसव्वदा तैयार किया। कल्ब खुदा का, ये मुसव्वदा उर्दू में तैयार किया गया था। मुल्क बादशाह का, मुल्क बादशाह का, अमल बहादुर शाह का, अमल बहादुर शाह का, हम इन फिरंगियों को हिंदुस्तान से भगा कर रहेंगे, आमीन। बगावत की उम्र बहुत लंबी नहीं थी। 3 महीने में ही अंग्रेजों ने दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया, गद्दारी का मुकदमा चलाया गया और देश निकाला दे दिया गया। उनके बेटों के सर कलम कर दिए गए। लाइट बंगाल इन्फेंट्री के 1 लाख से ज्यादा बागी सिपाहियों का भी यही हाल हुआ। उन्हें चुन चुन कर मारा गया। हर आलीशान दरवाजे और हर सायेदार दरख्त को फांसी के तख्ते में तब्दील कर दिया गया। 1857 के बाद तो दिल्ली उजड़ चुकी थी। कर्नल हुडसन की निगरानी में बहादुर शाह जफर को रंगून पहुंचाए जाने की तैयारियां हो चुकी थी। गली गली लूट मार मच चुकी थी। अंग्रेजों ने किसी को नहीं छोड़ा। खुद मुगल शहजादियां सरों पे चादर नहीं और हुमायूं के मकबरे में पनाह गुज़ी थीं। पहली जंग आज़ादी नाकाम होने के बाद मुल्क पर अंग्रेजों का पूरी तरह से कब्जा हो गया। हुकूमत बरतानिया ने हिंदुस्तान में सख्त सेंसरशिप नाफिज कर दी। तमाम अखबारों और रिसालों के मुदीरों और नामा निगारों को जेल में डाल दिया गया। अखबारों की जमानतें जब्त हुईं, लाइसेंस मंसूख कर दिए गए और जायदादें छीन ली गईं। दिल्ली उर्दू अखबार के मुदीर मौलवी बाकर को तोप के मुंह पर बांधकर उड़ा दिया गया। ये उर्दू सहाफत की पहली कुर्बानी थी। 1857 में तो अखबारों ने इतना कुछ फिरंगियों के खिलाफ लिखा कि मौलवी मोहम्मद बाकर, जो मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद थे, उनको तोप के मुंह से बांध कर उड़ा दिया गया, इसलिए कि उन्होंने अखबार में अंग्रेज़ों के खिलाफ कॉलम लिखा था और उर्दू में लिखा था। मौलवी बाकर को अंग्रेज़ों ने पूरे हिंदुस्तान को सबक सिखाने के लिए उनको मौत की सज़ा दी, लेकिन उस वक्त जो आज़ादी के जिसको कहना चाहिए दीवाने लोग थे, वो इससे कोई फ़र्क पड़ा नहीं। बगावत के नाकाम हो जाने से लोगों का हौसला टूट गया। यासो नाउमीदी के माहौल में मरसिया गोई जमाने की फितरत हो गई। फिरौन के हाथों शहीद होने वालों के साथ लोग उन्हें भी याद करते जो फिरंगियों के हाथों शहीद हुए थे। पीरी के बलबले हैं, खजा की बहार है। अनीस और दबीर ने मरसिये लिखे, हज़रत इमाम हुसैन और आले नबी और औलाद अली के। इन बुजुर्गों के दौर में इनकलाब शुरू हो गया आज़ादी की। 1857 के बाद कुछ अरसे तो खामोशी रहती है, लेकिन उसके बाद फौरी तौर पर तवज्जो दी जाने लगी बहुत सारी इस्लाहात की तरफ। गलियों और बाजारों में परवरिश पाने वाली ज़बान उर्दू इस तहरीक का परचम बन गई थी। बहुत सी नई सिनफें हमारे यहाँ शुरू हुई। मसलन हमारे यहाँ एसे राइटिंग 19वीं सेंचुरी से शुरू होती है। प्रेस को एक नई ज़िंदगी हमारे 19वीं सेंचुरी से मिलती है। नावल हमारे यहाँ 19वीं सेंचुरी से आता है। जदीद नज़्म 19वीं सेंचुरी से शुरू होती है। दिल्ली, लखनऊ जैसे कई शहरों की सड़कें और गलियां लाशों से पटी पड़ी थीं। तबाही, बर्बादी, मौत और साजिशों का बाजार गर्म था। यूनियन जैक का खौफनाक साया लहजा ब लहजा पूरे हिंदुस्तान पर फैल रहा था। मलकाए इंग्लिस्तान अब अपने आप को मलकाए हिंद भी कहने लगी थी। हालात की इस सुलगती राख में से उर्दू फीनिक्स की तरह उठ खड़ी हुई। दिल्ली बर्बाद हुई थी,
सुनी नहीं हुई थी। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब यहीं रहे और हिकायते वक्त रकम करते रहे। बंदा परवर, मेरा हाल इस फन में अब ये है कि शेर कहने की रविश और अगले कहे हुए अशार सब भूल गया, मगर हाँ, अपने हिंदी कलाम में से 1.5 शेर यानी कि एक मक्ता और एक मिसरा याद रह गया है। सो गाहे गाहे जब दिल उलटने लगता है तब 10-5 बार ये मक्ता ज़बान पर आ जाता है। जिंदगी अपनी जब इस शक्ल से गुजरी गालिब, हम भी क्या याद करेंगे कि खुदा रखते थे। फिर जब सख्त घबराता हूँ और तंग आता हूँ तो ये मिसरा पढ़कर चुप हो जाता हूँ। ऐ मर्गे नागहां तुझे क्या इंतज़ार है, ये कोई न समझे कि मैं अपनी बेरौनकी और तबाही के गम में मरता हूँ। जो दुख मुझको है उसका बयान तो मालूम, मगर उस बयान की तरफ इशारा करता हूँ। कुछ अजीज, कुछ दोस्त, कुछ शागिर्द, कुछ माशूक, सो वो सब के सब खाक में मिल गए। एक अजीज का मातम कितना सख्त होता है। जो इतने अजीजों का मातमदार हो उसको जीस्त क्यों करना दुश्वार करे। हर गोशा आशोबगाह था, हर दिल आजुर्दा, मुरासले मुश्किल थे और मुकालमे नापैद। इसीलिए गालिब को एक नई तर्ज तहरीर पर इन्हिसार करना पड़ा। उन्होंने एक खत में लिखा, मैंने वो अंदाज़े तहरीर ईजाद किया है कि मुरासले को मुकालमा बना दिया है। 1000 कोस से बज़बाने कलम बातें किया करो, हिज्र में विसाल के मज़े लिया करो। गालिब फ़ारसी के साथ उर्दू का खतूत लिखते हैं। जो उन्होंने गदर की कैफियत को पेश किया उसके अंदर आपके रोंगटे खड़े हो जाए। उनकी दिल्ली जिसमें किला-ए मुअल्ला बीच में था वो तबाह हो गई। उन्होंने इसके बारे में जो खतूत में बयान दिया है वो एक अपने आप में अहम पीस ऑफ लिटरेचर है। 1850 के आसपास गालिब ने अपने खतूत के ज़रिए वो नस्र पेश की जो आज भी हमारे लिए नमूना है। उनकी ज़िंदगी में ही उनके खतूत का इंतखाब ऊद हिंदी नाम से शाये भी हुआ, जो उर्दू रस्मुल ख़त में था। भाई उर्दू की पूरी वोकैबुलरी जो है उसमें आप देखेंगे 90% लफ्ज़ तो हिंदी के हैं। वर्ब का पूरा सिस्टम हिंदी का है। बाकी जो अल्फाज हैं उसमें फ़ारसी के और अरबी के भी हैं, उसी तरह संस्कृत के भी हैं। और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे। कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां, और ये गालिब ने गालिब के लिए कहा। फिर भी ये न खुद सताई है न मुबालगा आराई, क्योंकि वो किसी भी ज़बान के अजीम तरीन शायर के हम पल्ला व हम मर्तबा नजर आते हैं। गालिब की जिंदगी में ही गालिब का दीवान शाये होता और हाथों हाथ बिक जाता। 1844 में उनके पहले दीवान के शाये होने से लेकर आज तक यही दस्तूर कायम है। गालिब तक आते आते गोया के 18वीं सदी और उसके बाद 19वीं सदी उर्दू शायरी के शबाब का ज़माना है। उनकी शायरी और पोइट्री का कंटेंट है ना, वो हर जिंदगी से जुड़ा है। उसमें दुख, उसमें सुख, उसमें ट्रेजेडी, उसमें जॉय, उसमें फुलफिलमेंट, उसमें डिप्रिवेशन, सब कुछ है। एक बात गालिब को तो पता थी कि उनकी शायरी जो है वो कोई 2-4 दिन की शायरी नहीं, वो हमेशा रहेगी। हूँ गर्मिये निशाते तसव्वुर से नगमसंज, मैं अंदलीबे गुलशने नाफरीदा हूँ, कि मैं जो इमेजिनेशन है मेरा, उससे जो मुझे एक्साइटमेंट है, मैं उसकी वजह से गा रहा हूँ। मैं एक ऐसा परिंदा हूँ जो उस गुलशन के लिए गा रहा है जो अभी बना नहीं है। तो उसे मालूम था कि मेरी शायरी 100 साल बाद, 200 साल बाद, 300 साल बाद भी रेलेवेंट रहेगी। मुहक्किक हो या दानिश्वर, गालिब की शायरी के नए नए पहलू तलाश करने का सिलसिला आज तक जारी है। मगर गालिब की शायरी महज किताबों में कैद नहीं, कूचो बाजार में रवां है। हो जाएंगे हम
غالب تو خیر کیا کہنا ہے، غالب تو میں پڑھ کے بالکل ایک دم ایموشنل ہو جاتی ہوں. جیسے انہوں نے کہا ہے کہ رہیے اب ایسی ایک جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو، ہم سخن ہو کوئی نہ ہو، ہم زباں کوئی نہ ہو. زخم ہو کہ زرخیزی، خلوت ہو کہ انجمن، زندگی کے ہر مرحلے پر غالب بے ساختہ یاد آتے ہیں. دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے. غالب قرض کی پیتے تھے میں اور سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. تو غالب یہ سوچ کر نہیں آیا تھا اس طرف نا کہ ہمیں کمانا ہے. اس نے جو ہمیں مارگدرشن دیا، ہمیں جو زندگی سکھائی، زندگی گزارنے کے جو طریقے سکھائے ہیں ان شاعروں نے اور ادیبوں نے، یہی اتنا بڑا سرمایہ ہے، اتنی بڑی پونجی ہے کہ اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے. یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خوار ہوتا. غالب نے جو راہیں ہموار کی ان پر دیگر سخنوران بھی محو سفر تھے، جیسے داغ دہلوی اور الطاف حسین حالی. غالب کے مرنے کے بعد جو ایرا شروع ہوا اس میں داغ اور مفتی امیر مینائی سب سے اوپر تھے، محمد حسین آزاد اوپر تھے، خواجہ الطاف حسین حالی اوپر تھے. انہوں نے نئی نسلوں کی تعلیمی، دماغی، ذہنی، مینٹل برین ڈیولپمنٹ کے لیے ایک ان کو تعلیم و تربیت اور استادی شاگردی شروع کی. اس دور میں اردو شاعری کو اخبارات کی بڑھتی اشاعت سے بھی بے پناہ فائدہ پہنچا. استاد شورا کا کلام دور دراز علاقوں تک تیز رفتاری سے پہنچنے لگا. یہ مین لوگ تھے جو متاخرین. انہوں نے بجائے غزلوں کے اور مصرع دے کے، لائن دے کے، سمسیا دے کے غزلیں کہلوانے کے بجائے ٹاپکس دیے، شیشک دیے، عنوان، موضوعات پر نظمیں کہلوانی شروع کی. موسموں کے بارے میں، تہواروں کے بارے میں، رسم و رواج کے بارے میں. تاریخ گواہ ہے اردو شاعری کی مقبولیت کا وہ عالم تھا کہ لوگ بات چیت میں بھی موقع بے موقع اردو کے شعر پڑھا کرتے تھے. توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، دیوان خانوں سے بالا خانوں تک اردو اشعار کی دھوم تھی. شمع ہر رنگ میں جلتی سحر ہونے تک. They were the best of times and the worst of times. چارلز ڈکنس کا یہ قول 19ویں صدی کے آخری دور پر بالکل درست بیٹھتا ہے، کیونکہ اس انتشار کے دور میں بھی اردو بلندیوں کو چھو رہی تھی. مشاعرے اپنی تاریخی وراثت کے سبب مقبول ہو رہے تھے. پرنٹنگ پریس، صحافت اور دیگر اداروں کی وجہ سے اردو پورے ہندوستان کی زبان بن چکی تھی اور اب انقلاب کی آواز بننے جا رہی تھی. سنو اے بستے گانے زلف گیتی، ندا کیا آ رہی آسماں سے، کہ آزادی کا یک لمحہ ہے بہتر غلامی کی حیات جاویداں سے. داستان اردو کی اگلی قسط میں تعارف ہوگا اردو کی انقلابی سج دھج سے. خدا حافظ. اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہمارے